हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेकनोरी कैपिटल सागा। आइए आज हम जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का ट्रेंड किस तरफ है, सपोर्ट कहाँ पर है, रेसिस्टेंस कहाँ पर है और कहाँ तक जा सकती है। अगर वो सपोर्ट तोड़ती है तो कहाँ जाएगी, अगर वो रेसिस्टेंस तोड़ती है तो कहाँ जाएगी। और साथ ही साथ हम इससे पहले हम जानेंगे कि मैं आज कौन कौन से शेयर खरीदने वाला हूँ और क्यों खरीदने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, प्लीज़ रीड डिस्क्लेमर। सबसे पहला शेयर जो मैं खरीदने जा रहा हूँ, LPCA लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड, लाइका लैब्स टेक एक्विजिशन स्ट्रेटजिक पॉजिटिव रेटिंग। इसकी जो रेटिंग है वो पॉजिटिव है। तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस नियर बाई जो चल रहा है 2060 और प्राइस टारगेट मेरा रहेगा 2675। सॉरी। कंपनी डिस्क्रिप्शन इज LPCA इज ए फुली इंटीग्रेटेड इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चर एंड मोर देन 350 formulations and 80 APIs for various therapeutic segments. Sorry. LPCA is a therapy leader in India for anti-malaria with a market share of over 34% and a fast-growing presence in the international market as well. The company has leading brands in 5 therapeutic areas, with 3 of its branded formulations being ranked among the top 300 Indian brands by ORG IMS. Key investment arguments are IPCA Laboratories. Board has approved acquisition of 26.57% stake in Leica Labs for a consideration of rupees 97.89 crore and have also approved entering a joint management control agreement with the promoters of Leica Labs, thus triggering an open offer. The acquisition is a strategic positive for IPCA as it provides entry into lucrative life injectables business in India and raw markets, which bodes well as IPCA does not have a presence in this space now. Strong position across chronic and acute therapy and a robust demand environment are key growth drives for the domestic formulation segment. However, muted performance of the API business and rising cost pressure could be near-term challenges, though long-term growth levers are intact. Be retained by recommendation on the stock with unchanged price target of 2675. एंड नेक्स्ट वन जो अगला हमारा है वो कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशनरी जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी जो Q2 में हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। Q2 फाइनेंशियली 2022 रिजल्ट रिव्यू। सेक्टर जो रहेगा वो कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशनरी रहेगा और जो हमारा व्यू है वो इस पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव समरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ओपनिंग अप ऑफ स्टोर्स, improved footfalls and higher pent-up demands led to better than expected recovery for branded apparels, footwear and hospitality sectors in Q2 financial year 2022. Revenue has reached 75 to 109% of pre-COVID level sales. Better operating leverages resulting in improved profitability. And next one is garments and home textile companies posted strong double-digit revenue growth, led by sustained higher export demand and improved demand from domestic market. Higher capacity utilization and operating efficiencies led to margin expansion for most companies. Branded apparel, jewelry and footwear companies will see revenue crossing pre-COVID level mark with festive demand start of bedding season aiding in reporting strong sales in Q3 Q4. Textile companies will continue to benefit from improving India's market share in export markets. Preferred picks are branded apparels, footwears and retail. These are the stocks: ABFRL, Trent, Titan, Bata India and Shoppers stock. Textile KPR Mills, Himatistinka Seth and SP Apparels. Out of home discretionary, Julian Food Works, Indian Hotels Company, PVR and Inox Leisure. Leaders for Q2 financial year 2020: Trent, Shoppers Stock, Bata India, ABFRL, Himatistinka Seth and Bandrala Holidays. Laggards for Q2 financial year 2022: Laxo Footwear and Belsuppin India. आइए आज हम निफ्टी के एनालिसिस के बारे में जानते हैं
कि आज का निफ्टी का ट्रेंड किस तरह से रहेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी इस समय जो क्लोज हुई थी वो 70,415 के आसपास क्लोज हुई थी। तो अभी हमारा जो सबसे पहले जो फर्स्ट सपोर्ट दिख रही है वो 17,260 के आसपास है। आइए मैं इसका ये है आपका जो 17,260 के आसपास है। और नेक्स्ट अगर इसको भी ब्रेक करके मार्केट अगर नीचे जाती है तो फिर हमारा नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगी वो 16,470 के आसपास रहेगी। और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट ऊपर जाएगी तो सबसे पहले जो हमारा रेसिस्टेंस रहेगा वो 18,230 के आसपास रहेगा। और उसको भी ब्रेक करके अगर जाती है तो 18,610 रहेगा। ये आज का है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। तो ये था निफ्टी का जो हमारा एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का जो इस समय जो क्लोज हुआ था वो 37,442 के आसपास हुआ था, क्लोज हुआ था मार्केट सॉरी। तो सबसे पहले जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो 36,880 के आसपास रहेगी। अगर मार्केट नीचे जाती है तो 36,880 को इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर जाती है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 36,330। और अगर 36,330 भी क्रॉस कर जाती है तो फिर हमारे पास रहेगा 36,000 के आसपास। तो ये हमारे तीन जो हैं सपोर्ट हैं। और अगर ऊपर जाती है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ अगर मूव करती है तो 38,415 जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर मार्केट इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए अगर सस्टेन करती है मार्केट यहाँ पर, तो इसका मीन्स मानिए कि आप बैंक निफ्टी फिर आपका अगला टारगेट जो रहेगा 40,210 के आसपास का रहेगा। तो आप कहीं इसके मिड के बीच में भी कहीं आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इस तरह से अगर मार्केट नीचे जाती है 36,880 का लेवल अगर करती है, ब्रेक डाउन करती है, तो आपको भी इसका ये मान के चलिए कि 36,330 के आसपास ये इसका जो सपोर्ट रहेगी। तो आपको हमेशा सेफ साइड खेलना है। और सेफ साइड अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आपको इसके मिड में कहीं 50% के आसपास जो भी आपका रहेगा, 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट जो भी आपका टारगेट आता है, तो आप अपने टारगेट के हिसाब से उसका प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर ये वाला ब्रेक होता है 38,415 का, तो आपका जो भी है 39,000 जहाँ जो भी आप इसका प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यही था आज का एनालिसिस। थैंक यू।